Today we will start thyroid in endocrine pharmacology. In last lecture, we talk about what is the general concept of the endocrine pharmacology, mechanism of action of the hormone, okay, various gland, endocrine gland, what is the difference between endocrine gland and exocrine gland, and how the endocrine gland secretion affect our body. तो general हमारा हो गया है. Now we will see the thyroid one, okay. So first we will see the thyroid gland, and you already know the anatomy of thyroid gland, okay. What is the location of thyroid gland, okay, what is the shape of thyroid gland. Now the function of thyroid gland to secrete hormone, that is thyroxine. Which hormone is secreted by thyroid gland? That is called thyroxine. So how the thyroid gland secrete the thyroxine? Okay, in brain there is a thyroxine releasing hormone, okay. This hormone released by the hypothalamus of the brain, okay. Then it act on anterior lobe of pituitary gland. Thyroid releasing hormone want anterior pituitary gland to release TSH, to release the TSH. So anterior pituitary gland release the thyroid stimulating hormone, thyroid stimulating hormone. This hormone stimulate the thyroid gland to release the thyroxine. So कैसा है? From brain, thyroid releasing hormone, that is from hypothalamus, then it stimulate the anterior pituitary gland, they release thyroid stimulating hormone, then this hormone stimulate the thyroid gland which release the thyroxine. So आपका जो thyroid gland है, thyroid gland secrete the thyroxine, okay, it need the iodine to forms the T3 and T4. So it is thyroxine, triiodothyroxine and tetraiodothyroxine, but it is the thyroxine. TSH is not secreted by the thyroid gland, it is secreted by anterior pituitary gland, and this is the thyroid releasing hormone which is secreted by hypothalamus of the central nervous system or brain. Now this thyroid gland take 95% of the iodine. How much? 95 to 96% of iodine from your body. इसीलिए तो हमने बोला है ना, iodine is very important, okay, in your diet. So 90 to 95% of the iodine from your body, okay, is used to make thyroid hormone. So thyroid hormone बनाने के लिए कितने iodine चाहिए? 90 to 95%, right? So the main product secreted by, or main hormone secreted by the thyroid gland is T4. This is very important, okay. So the main hormone which is secreted by the thyroid gland is T4. Which one it is? T4. What is T4? What is T3? Triiodothyroxine. Okay, 1, 2, 3 molecule of iodine. Tetraiodothyroxine. So thyroxine secreted by thyroid gland, and they require iodine to make it more functional, or actually it make it functional, iodine attach होने के बाद. So T3 और T4 में which one was the main? T4, okay. Main secretory product को secretory, we are talking about not the action वाला, हम लोग देखते हैं secretory product कौन सा है? T4, okay. And in periphery and tissue, कहां पर है? इन पेरिफेरी एंड टिश्यू. टिश्यू यानी कहां पर? जहां पर मेटाबॉलिज्म होता है. टिश्यू में सेल है और सेल में मेटाबॉलिज्म होता है, ओके, यू ऑलरेडी नो, ओके. इट इज कन्वर्टेड. T3 जो T4 है, ये मेन प्रोडक्ट है विच इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, ओके. It enters into the periphery, that is in tissue, where there is a metabolism is most important function. Here this T4 is converted into T3. T4 is converted into T3, and this T3 is more potent. This is what I want you to remember, okay. Thyroxine is the hormone secreted by
that is called thyroid gland. Iodine is required to form the functional thyroid hormone, okay, triiodo and tetraiodothyroxine. The main, out of T3 and T4, the main which is secreted product of your thyroid gland is T4. This T4 enter into your peripheral circulation, goes to the tissue or to the cell where there is a metabolism of the cell. Here T4 is converted into T3 and T3 is more potent. Okay, so there are a lot of questions here. Which is more potent, T3, T4? T3 is more potent. Which is the main secreted product of your thyroid gland, thyroid hormone, T4 or T3? T4. Okay. Which hormone is required to stimulate the thyroid gland to secrete the thyroid hormone? That is thyroid stimulating hormone. Where it is? Where from it is released? Anterior pituitary gland. Who want anterior pituitary gland to release TSH? Hypothalamus want to release the TSH from anterior. So TSH, pituitary, TRH, that is from brain, and T4, that is from your thyroid gland. Okay. Now, along with this endogenous secretion, what I am saying, there are two types. One is endogenous. What is endogenous? The secretion of T4 inside the body. Sometime we can give exogenously, हम लोग बाहर से भी thyroid hormone देते हैं, right? So that is why I am saying endogenous secretion, T4 inside the body. Okay, and this T4 is converted into T3. We already know this, and T3 is more potent. So along with the endogenous secretion of T3 and T4, there is a secretion of one more thing that is called TBG. People forget about TBG. What is this TBG? TBG is thyroid binding protein. So this TBG secretion, thyroid binding protein, it is very important. And which one? Thyroid binding protein, that is globulin. Which protein? Globulin. इसलिए बोलते हैं ना thyroid binding protein, that is called the globulin. This TBG is very important to detect. Okay, जो आपके बॉडी में हार्मोन है वो एंडोजिनस है या एक्सोजिनस है. अगर एंडोजिनस होगा तो टीबीजी रहेगा, एक्सोजिनस होगा तो नहीं रहेगा. सो टीबीजी इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट टू डिटेक्ट हार्मोन इज एंडोजिनस और नॉट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन. ये जनरल आइडिया है हमारे थायराइड के हार्मोन में कि T3 कैसा है, T4 क्या है. T3 we already know it is more potent. Okay, so T3 is more potent. We already see that T3 is more potent because it has a feedback mechanism to the pituitary gland. So T4 is secreted by thyroxine, and in tissue or in cell, this T4 is converted into T3. T4 is converted into T3 and this T3 is more potent क्योंकि इसका एक feedback loop mechanism है. कहाँ पर? That is called anterior pituitary gland में. This is the feedback mechanism. Okay, took a anterior pituitary gland. Okay, and then again from anterior pituitary gland to the hypothalamus. अगर इसकी लेवल कम हो गई तो ये anterior pituitary gland को मैसेज देगा कि कम हो गई करके, और वहां से मैसेज जाएगा रिलीजिंग हार्मोन, वापस हार्मोन रिलीज होगा, वापस T4 इज कन्वर्टेड इनटू T3. अगर इसकी लेवल नॉर्मल है तो मैकेनिज्म जाएगा क्या? वहां पर नहीं जाएगा. आउट ऑफ टोटल T4 और T3 अगर 100% हार्मोन है आपका, out of this only 0.01 to 0.2% of the thyroid hormone is free. इतना ही फ्री रहता. 100% में से थायरोक्सिन हार्मोन में कितना फ्री है? 0.1 to 0.2% इज फ्री. फ्री यानी एक्टिव फॉर्म में रहता. फ्री यानी कौन से फॉर्म में? दैट इज T3, दैट इज द एक्टिव फॉर्म. एंड दैट फ्री हार्मोन ओके इन पेरिफेरी इज मेजर्ड. और जो बाकी का जो है 99.99 और 98% बाइंड फॉर्म में रहता. या वो पूछते हैं आपको 100% में से 99.99% इज बाइंड फॉर्म एंड ओनली 0.01% इज फ्री फॉर्म विच इज मेटाबॉलिकली एक्टिव. सो टोटल T4 इज ओनली मेजर्ड इन कंडीशन जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम है. अब T4 का क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस तो T3 का है क्योंकि वही एक्शन कर रहा है. तो T4 का भी मेजर कर सकते हैं. हाँ, हम लोग T4 कब मेजर करते हैं? इफ देयर इज अ प्रोटीन माल न्यूट्रिशन और प्रोटीन रिलेटेड सम कंडीशन लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम. ओके, इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम
whenever we talk about the protein, or whenever there is a less albumin, like albuminuria in nephrotic syndrome, we talk about the T4 or might be in हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. ओके, सो हम लोग T4 को कब कंक्लूड करते हैं? whenever there is a nephrotic syndrome और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. ओके, क्योंकि बाकी सारे टाइम पे हम लोग जो मेजर कर रहे हैं वो क्या है? एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन, दैट इज द T3. T4 is like not really the active form, it is a bind with the globulin protein and then it is converted into T3, and T3 is the active form, which is the free form. So T4 का measurement is not really important, T3 is very important, right? So T4 कब मेजर करते हैं? whenever there is a nephrotic syndrome, whenever there is a hormone replacement therapy, and this free T3 or T4 and the TSH, all these are the thyroid related hormone value. TSH is best initial test. अगर कोई भी आपको थायराइड प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप T3 भी मत करो, T4 मत करो. विच इज द बेस्ट टेस्ट? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. TSH का लेवल is the best initial diagnosis. I am saying not confirmatory. Initial diagnostic test जो है वो आपकी कौन सी है? That is called the TSH. T3, T4 नहीं, right? T3 is the potent and active form. लेकिन सबसे important कौन सा है आपका? That is called, अगर आपको डायग्नोसिस करना है प्राइमरीली, अगर पहले आपको कोई भी टेस्ट करनी है थायराइड की, तो आप कौन सी करोगे? दैट इज कॉल्ड TSH. TBG we don't always do that. TBG के बारे में हम लोग कुछ करते नहीं रहे. If patient is taking, अगर पेशेंट एक्सोजीनस थायराइड हार्मोन अगर ले रहा है एक्सोजीनियसली, देन वी कैन परफॉर्म द TBG, राइट? सो विच इज टू डिफरेंशिएट वॉट एवर द थायराइड हार्मोन और थायराइड लेवल, इट इज एक्सोजीनस और इट इज एंडोजीनस, राइट? सो यूजुअली दिस लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन वी कैन डिटेक्ट. TBG हम लोग रेगुलरली नहीं करते कभी, राइट? TBG only to differentiate either it is exo or endogenous thyroxine, उसके लिए हम लोग करते हैं. अगर कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड हो और इस कैंसर में हम लोगों ने अगर थायराइड ग्लैंड निकाल दी, रिमूव कर दी, उसके बाद कुछ रेमनेंट पार्टिकल बचे हैं क्या थायराइड ग्लैंड के, वो देखने के लिए हम लोग TBG का टेस्ट कर सकते हैं. हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम लोग TBG कर सकते हैं, राइट? सो और सम पेशेंट टू ऑन व्हेन दे इज ऑन लूज वेट थेरेपी, ओके, और व्हेन दे वांट टू रिड्यूस द वेट, ओके, इफ patient is taking thyroid hormone to lose the weight, that is exogenous, तो ऐसी जगह पर ही हम लोग क्या करते हैं? we will perform the TBG. तो TBG हम लोग रूटीनली नहीं करते, राइट? तो आपको क्या क्या याद रखना है? मेन सिक्रेटरी हार्मोन कौन सा है? T4 इज द मेन सिक्रेटरी हार्मोन. पोटेंट कौन सा है? T3 इज पोटेंट. T4 और T3 छोड़कर पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा हार्मोन है? TSH. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और एक और है थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन और थायराइड बाइंडिंग प्रोटीन. ओके, सो which is the best initial test for diagnosis? TSH. Initial diagnosis के लिए कौन सा बेस्ट है? That is called the TSH. Okay, so this is all about your which one? Hormone. Total T3 and T4 are always not accurate. थोड़ा सा fluctuation नीचे नीचे ऊपर नीचे थोड़ा सा रहता है, right? So this is all about your which one? That is called various hormone. Okay, so there is one test that is called radioactive iodine uptake test. एक टेस्ट भी रहती है रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट. ओके, यूजुअली वी विल परफॉर्म दिस टेस्ट इन हाइपरथायरॉयडिज्म. थायराइडिज्म के दो है थायराइड ग्लैंड के, एक हाइपो कम सिक्रीशन, एक हाइपर, दैट इज हाइपरथायरॉयडिज्म. सो प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में हम लोग एक टेस्ट करते हैं. हम लोग टेस्ट के बारे में बात कर रही है सारी. सो रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट हम लोग प्राइमरी, दैट इज कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म के वक्त करते हैं. हियर इन प्राइमरी, जो प्राइमरी हार्मोन है आपका TSH, दैट इज डिक्रीजेस, and T3 and T4 they are slightly increases. So that is in primary hyperthyroidism, right? And this radioactive iodine uptake test, radioactive iodine uptake, in this test, okay, so this uptake is increase.
अपटेक क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि TSH है ही नहीं तो ज्यादा चाहिए, राइट. सो RAU इज दैट इज कॉल्ड इंक्रीज. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड. और कौन सी टेस्ट हम लोग थायराइड में करते हैं, राइट. इन सेकेंडरी hyperthyroidism, this TSH, T3 and T4 all are decreases, and this RARU it is also decreases, right. So this is very important. सेकेंडरी में सब कुछ डिक्रीज है, प्राइमरी में सिर्फ TSH ही डिक्रीज रहता. सो दिस इज ऑल अबाउट रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट. तो ये होगी आपकी रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट. अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट इटियोपैथोजेनेसिस क्या रहती है थायराइड के प्रॉब्लम के लिए. हम लोग बोलते हैं ना थायराइड का प्रॉब्लम है. सो वी विल सी इटियोपैथोजेनेसिस. Functional disorder, right. So imbalance in production of thyroid hormone arise because of thyroid gland. कोई thyroid gland का अगर प्रॉब्लम है या पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर कोई प्रॉब्लम है, राइट, या हाइपोथैलेमस का कोई प्रॉब्लम है, देन यू कैन गेट सम प्रॉब्लम इन थायराइड ग्लैंड, राइट. तो कौन से है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म एक है, हाइपोथायरॉइडिज्म और दूसरा है हाइपरथायरॉइडिज्म. हाइपोथायरॉइडिज्म का एक एग्जांपल आपको कभी भी पूछे तो आपको कौन सा बोलना है, हशीमोटो थायराइडिटिस. ओके, और हाइपर का अगर आपको एग्जांपल पूछे तो एवरीबडी नो दैट इज ग्रेव्स. ओके, ग्रेव्स डिसीज. सो हाइपो एंड हाइपर बिकॉज ऑफ थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमिक प्रॉब्लम. पिट्यूटरी ग्लैंड में TSH में प्रॉब्लम होगा, हाइपोथैलेमस में TRH में प्रॉब्लम होगा, थायराइड में थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेशन में प्रॉब्लम होगा, राइट. और कोई एबनॉर्मलिटी ये छोड़कर, राइट. सो ग्वाइटर, वी टॉक अबाउट द ग्वाइटर. ग्वाइटर में जो हम लोग बोलते हैं ना स्वेलिंग इन द नेक. ओके, सो एंडेमिक ग्वाइटर रहता है, वन इज कॉल्ड द एंडेमिक ग्वाइटर. ओके, जो डिफ्यूज रहता है, और दूसरा है दैट इज कॉल्ड मल्टीनोडुलर. सो इफ दिस इज द थायराइड ग्लैंड, ओके, ये हो गया आपका थायराइड ग्लैंड पूरा H शेप जो भी है. एंडेमिक मीन्स होल ऑफ दिस थायराइड ग्लैंड इंक्रीज इन साइज, ये है एंडेमिक ग्वाइटर. एंड मल्टीनोडुलर मीन्स दिस इज योर नॉर्मल थायराइड ग्लैंड एंड यहां पर एक नोड्यूल जैसा स्वेलिंग है, यहां पर एक नोडुल जैसा स्वेलिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी नोडुलर ग्वाइटर. तो एक है मल्टी नोडुलर ग्वाइटर और एक जगह नॉर्मल जो रहती है साइज, उस नॉर्मल साइज से बड़ी साइज हो जाती है. दिस इज कॉल्ड एंडेमिक और डिफ्यूज ग्वाइटर. ओके, और क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, ट्यूमर और कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड. ओके, ट्यूमर दैट इज ग्लैंड है तो एडिनोमा, एडिनोमा ऑफ थायराइड ग्लैंड. कैंसर, कैंसर में फॉलिकल जो रहते हैं, थायराइड फॉलिकुलर कैंसर है, बहुत सारे कैंसर है, मेडुलरी कैंसर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्या क्या हो सकता है थायराइड ग्लैंड में. एक तो ये सिक्रीशन का प्रॉब्लम हो सकता है, हाइपर हाइपर ग्वाइटर हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, राइट. अगर ट्यूमर हो गया तो ट्यूमर का मेटास्टेसिस भी होगा कोई दूसरे ऑर्गन में, या कहीं और अगर कैंसर हुआ होगा और उस कैंसर का मेटास्टेसिस, सेकेंडरी मेटास्टेसिस. मेटास्टेसिस मीन अ डिस्टेंस स्प्रेड. ओके, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मेटास्टेसिस. मेटास्टेसिस भी हो सकता है, कहीं और कैंसर है और उसके सेल, कैंसरस सेल थायराइड में आ गए फ्रॉम एल्सवेयर. ओके, अगर थायराइड हार्मोन का अगर डेफिशिएंसी हो, कम हो गया, तो देयर आर सर्टेन डिजीजेस, राइट. क्रिटिनिज्म, Cretinism is one of the disorder wherever there is a deficiency of thyroid hormone. Congenital deficiency, बचपन से. Cretinism is congenital deficiency of thyroid hormone. Since birth से deficiency है, congenital deficiency of thyroid hormone. तो क्या होगा, क्रिटिनिज्म यानी हाइट कम हो जाएगी, हाइट, इसको हम लोग बोलते हैं स्टंटेड ग्रोथ. ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, एक्वायर्ड नहीं है, राइट. सिर्फ ग्रोथ ही स्टंटेड नहीं होती, ये मेंटल रिटार्डेशन, जो वो भी मेंटल रिटार्डेशन होगा,
दैट इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड क्रिटिनिज्म. सो क्रिटिनिज्म हो गया, मिक्सोडिमा हो गया, राइट. मिक्सोडिमा यानी यहाँ पर भी बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द थायराइड हार्मोन देयर इज अ एडिमा ऑल ओवर बॉडी. ऑल ओवर बॉडी यानी सबक्यूटेनियसली, ये स्किन के नीचे एडिमा आ जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगा, राइट. सो ये है आपके वेरियस इटियोपैथोजेनेसिस एंड डिसऑर्डर. इसको हम लोग डायग्नोसिस कैसे करते हैं? बाय मेजरिंग. हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है TSH मेजरमेंट. ओके, TSH मेजरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, राइट. सो कभी सप्रेस मिलेगा, कभी एलिवेटेड मिलेगा, राइट. इफ TSH इज एबनॉर्मल, ओके, देन डिक्रीज लेवल ऑफ T4 एंड T3, राइट. सो इफ TSH is abnormal, then T3 and T4 level आपको चेक करनी है उसके बाद में, right? And usually it will get decreases. Okay, so if TSH is abnormal, not normal, then decrease level of T3 and that is called T4, right? So अगर कैंसर हो तो कैसे डिटेक्ट करोगे? कैंसर मार्कर रहते हैं, राइट. जैसे थायरोग्लोबुलिन हो गया, राइट. कैल्सिटोनिन हो गया हार्मोन. कैल्सिटोनिन भी इंपॉर्टेंट है. कैल्सिटोनिन इज द हार्मोन बट इट एक्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ द कैंसर ऑफ थायराइड एंड इट वर्क लाइक अ मार्कर, राइट. थायरोग्लोबुलिन. ओके, तो ये सारे आपके इटियोपैथोजेनेसिस एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गए. ओके, सो दिस इज वी ऑलरेडी डिस्कस लाइक कि T3 इंपॉर्टेंट है, T4 इंपॉर्टेंट है या TSH. और क्या कर सकते हैं आप? USG कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, राइट. नोडुलर है, डिफ्यूज है, बेनाइन कैरेक्टर है या मैलिग्नेंट कैरेक्टर है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट? बेनाइन इज लेस सीवियर and remain in organ. Malignant is more severe and it has metastasis. चला जाता है, वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में चला जाएगा. हाउ विल यू डिफरेंशिएट बाय सोनोग्राफी? मैलिग्नेंट है कि दैट इज कॉल्ड बेनाइन है. अगर बेनाइन रहेगा तो जो कैंसर रहेगा, राइट, उसकी जो बॉर्डर रहेगी यूजुअली वो स्मूथ बॉर्डर रहेगी. कैसी बॉर्डर रहती है उस स्वेलिंग की? स्मूथ बॉर्डर. ओके, और इन सोनोग्राफी, ओके, इट इज अ वेव, सो वी विल सी द इकोज. इकोज एक तो हाइपर इको मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा इकोइक मिलेंगी आपको शेडोज सोनोग्राफी में, या कम मिलेगी, हाइपो मिलेगी. ओके, सो इन केस ऑफ बेनाइन यू कैन सी द स्मूथ बॉर्डर. बॉर्डर आपको स्मूथ मिलेगी, लेकिन कैसे रहेगा वो दिखेगा आपको? हाइपर इकोइक. And in case of malignant, the border is irregular. और आपको दिखेगा कैसा? हाइपोइकोइक. नॉर्मल नहीं दिखेगा आपको, एक को बहुत ज्यादा इको वाला दिखेगा आपको, व्हाइटिश कलर स्मूथ बॉर्डर के साथ, राइट, या हाइपोइकोइक. ओके, प्लस मैलिग्नेंसी में कैल्शियम क्रिस्टल डिपॉजिटेड दिखेंगे आपको इन केस ऑफ मैलिग्नेंट में, राइट. अगर आपको ये कैंसर है या नहीं इसके आपको सस्पिशियस है, ओके, यू आर नॉट कंफर्म, तो आप बायोप्सी भी कर सकते हैं, राइट. सो इन केस ऑफ बायोप्सी वी हैव टू टेक द पीस ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्लैंड and examine the histopathology. And in histopathology आप देखो कि सेल जो नॉर्मल सेल है या कैंसरस सेल है, वी कैन डायरेक्टली सी अंडर द माइक्रोस्कोप बाय डूइंग द बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन. हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम लोग कर सकते हैं, राइट. रेडियोएक्टिव स्कैनिंग के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, राइट. सो बायोप्सी में बहुत सारी बायोप्सी रहती है. हम लोग थायराइड में जो बायोप्सी करते हैं वो है फाइन निडल एस्पिरेशन बायोप्सी, FNAC, ओके, जिसको हम लोग फाइन निडल एस्पिरेशन. सी मीन्स साइटोलॉजी. और कैसे करते हैं? निडल से हम लोग थोड़ा पार्ट सक कर लेते हैं, देन वी विल सी द साइटोलॉजी. और ये ओपीडी प्रोसीजर है अंडर ऑल असेप्टिक प्रिकॉशन. सारे हम लोग प्रिकॉशन लेकर उसका पैरामीटर्स वाइटल्स अंडर द वाइटल कंट्रोल अल्ट्रासोनोग्राफिकल गाइडेंस में हम लोग ये थायराइड बाय FNAC कर सकते हैं. सर्जिकल बायोप्सी भी कर सकते हैं. ड्यूरिंग द सर्जरी वी हैव टू टेक आउट द थायराइड ग्लैंड एंड दैट थायराइड ग्लैंड वी विल सेंड फॉर द हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन. तो ये होगी डायग्नोसिस के बारे में, डायग्नोसिस कैसे करते हैं. अब आया मेन पार्ट आपका ट्रीटमेंट. व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ
थायराइड प्रॉब्लम, सबसे इंपॉर्टेंट है लीवोथायरॉक्सिन। लीवोथायरॉक्सिन यू कैन यूज, कब देते हैं हम लोग थायरॉक्सिन? जब थायरॉक्सिन कम होगा। कम कब होगा? जब हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, तभी तो थायरॉक्सिन दोगे ना। सो कौन सा दोगे? लीवोथायरॉक्सिन, राइट। इन केस ऑफ ग्रेव्स डिजीज, you can give propylthiouracil and methimazole. These are the treatment of choice in case of Graves' disease. Propylthiouracil and methimazole in case of Graves' disease. Okay, रेडियोएक्टिव आयोडीन भी हम लोग दे सकते हैं. ओके, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है, इफ इट इज द हाइपरथायरॉयडिज्म है या ट्यूमर है, राइट, सो इसमें हम लोग क्या देखते हैं? रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं, राइट। सो हाइपो में लिवोथायरॉक्सिन, हाइपर या कैंसर अगर हो तो रेडियोएक्टिव आयोडीन देते हैं, राइट। ग्रेव्स डिजीज में पीटीयू, दैट इज प्रोपाइलथायोरेसिल एंड मेथिमाजोल, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट, अगर सिस्ट है सो यू कैन इंजेक्ट द इथेनॉल इंजेक्शन इन दैट पर्टिकुलर सिस्ट। सो दीज आर द ट्रीटमेंट लाइन ऑफ यू, बट मेन ट्रीटमेंट इज सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम लोगों को क्या करना है? कंप्लीट रिमूवल ऑफ द थायराइड ग्लैंड, इसको हम लोग थायराइडेक्टॉमी बोलते हैं, राइट। सो दैट इज अ सर्जिकल थायराइडेक्टॉमी। Okay, so complete removal of the thyroid gland including lymph node जो सप्लाई करते हैं। ओके, अगर कैंसर अगर हो तो आपको थायराइड ग्लैंड इंक्लूडिंग द लिम्फ नोड, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन ट्रीटमेंट, वेरियस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, फार्माकोलॉजिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। रेडियोएक्टिव थेरेपी भी है इसमें, अगर लार्ज साइज ऑफ ग्वाइटर अगर हो तो आप रेडियो एक्टिव आयोडीन यूज कर सकते हो। वी ऑलरेडी सी इन केस ऑफ द कैंसर रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी हम लोग यूज कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन ट्रीटमेंट। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इन लास्ट वी विल जस्ट डिफरेंशिएट हाइपोथायरॉयडिज्म फ्रॉम द हाइपरथायरॉयडिज्म। नाउ वी विल सी हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, ये देखते हैं अभी। हाइपोथायरॉयडिज्म, राइट। सो क्या होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में? साइन सिम्टम्स, ओके। सो इन हाइपोथायरॉयडिज्म अगर हार्मोन कम सिक्रेट हो जाएगा, राइट, सो हमारा क्या रहेगा? जो एबिलिटी है हमारी बॉडी का टू टॉलरेट द कोल्ड, एबिलिटी टू टॉलरेट कोल्ड टेम्परेचर कम हो जाएगी, राइट। ठंडी नहीं सहन कर सकता वो पेशेंट, अगर पेशेंट इज ऑन हाइपोथायरॉयडिज्म रहेगा, राइट। और टायर्ड रहेगी वो पेशेंट इज टायर्ड, कॉन्स्टिपेटेड, डिप्रेस, ओके। वेट गेन होगा यहाँ पर, ओके, वेट गेन होगा, राइट। सम टाइम ओके, स्वेलिंग इन नेक, ओकेजनल रहेगा नहीं, ओकेजनल रह सकता है, राइट, ओके। अगर प्रेगनेंसी अगर रहेंगी और उसमें अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है एट दैट टाइम, सो देयर इज अ डिले इन ग्रोथ, डिले इन द ग्रोथ और इनटेक IQ ऑफ द बेबी, IQ। तो इसीलिए हम लोग ऑलरेडी प्रेगनेंसी के पहले लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन हम लोग देते हैं, राइट। क्यों होता है इडियोपैथोजेनेसिस, क्यों होता है हाइपोथायरॉयडिज्म? रीजन बहुत सिंपल है, आप आयोडीन कम अगर खाते होंगे डाइट में, राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। या ये ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसको हम लोग हशीमोटोज थायराइडिटिस बोलते हैं। आपकी इम्यून सिस्टम आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर अटैक करती है, राइट। सो ये हो गए आपके कॉजेस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन हाइपोथायरॉयडिज्म। कैसे डायग्नोसिस करोगे? पहले ही बोला था हम लोगों ने, सबसे पहले हम लोग क्या करते, कभी भी TSH लेवल करते हैं, TSH, एंड देन वी विल मेजर द लेवल ऑफ थायरॉक्सिन,
दैट इज T3 एंड T4 कम हो जाएगी, राइट। अगर इसको प्रिवेंट करना है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आयोडीन कम है। सो प्रिवेंट करना है तो आप सॉल्ट कौन सा यूज करो? आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज कर सकते हैं, राइट। और ट्रीटमेंट मैनेजमेंट, थायरोक्सिन दे दो उसको, कौन सा? लीवोथायरोक्सिन, राइट। लीवोथायरोक्सिन दे दो, राइट। एंड दिस इज सेफ इन प्रेगनेंसी, लीवोथायरोक्सिन इज सेफ इन प्रेगनेंसी। तो ये हो गया आपका कौन सा? दैट इज कॉल्ड हाइपोथायराइडिज्म, राइट। सो साइन एंड सिम्टम्स वी ऑलरेडी सी दैट पुअर मेमोरी रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन में बेबी का डेवलपमेंट नहीं होगा, एवरीथिंग लाइक डिप्रेशन, हार्ट रेट धीरे धीरे ब्रैडिकार्डिया हो जाएगा, राइट। वेट गेन हो जाएगा, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज रहेंगे क्योंकि इनका टॉलरेंस जो है कोल्ड के लिए वो कम हो रहा है, राइट। रेस्पिरेटरी रेट भी कम हो रहा है। दीज आर ऑल साइन एंड सिम्टम्स, ओके। इंटेस्टाइन में हम लोगों ने देखा है कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन? दैट इज कॉल्ड साइन। एक साइन वुमेन में है, दैट इज मेनोरेजिया। व्हाट इज मेनोरेजिया? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इंक्रीज ब्लीडिंग, ज्यादा अगर ब्लीड होता है तो आपको लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन देखना बहुत जरूरी है, राइट। नाउ दिस इज ऑल अबाउट हाइपोथायराइडिज्म। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म? ओके, हम लोग टाइप्स भी है इसके। वन इज कॉल्ड प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, ओके, सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म एंड कंजेनाइटल। सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी, सेंट्रल एंड कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म। व्हाट इज प्राइमरी? आपको ऑलरेडी पता है, आयोडीन डेफिशिएंसी से जो हो रहा है दैट इज अ प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। ऑटो इम्यून को भी हम लोग प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म ही बोलते हैं, राइट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। सेंट्रल टाइप यानी सेंट्रल में, ब्रेन में पिट्यूटरी अगर कुछ प्रॉब्लम हो, ओके, पिट्यूटरी एडिनोमा हो, राइट, या ब्रेन की कोई सर्जरी हो गई हो, क्रेनियोफैरेंजियोमा हो, या सीएनएस या ट्यूबरकुलर सीएनएस इन्फेक्शन हो, तो ये हो गया आपके सेंटर का। दैट्स व्हाई देयर इज अ, सो आपको हाइपोथायराइडिज्म क्यों है, इसलिए आपको प्राइमरी की आपको कॉजेस पता है, ऑटो इम्यून एंड आयोडीन डेफिशिएंसी। सेंट्रल यानी आपको ब्रेन की या सीएनएस के कॉजेस रूल आउट करना पड़ेगा। एंड कंजेनाइटल, कंजेनाइटल एवरीबॉडी नोज, कोई अगर कंजेनाइटल ही थायराइड ग्लैंड डेवलप नहीं हो गई, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसजेनेसिस, दैट इज कॉल्ड अ डिसजेनेसिस। तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ, दैट इज कॉल्ड हाइपोथायराइडिज्म, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन? दैट इज कॉल्ड हाइपोथायराइडिज्म। सो ये हो गया आपका हाइपोथायराइडिज्म। डायग्नोसिस कैसे करना है हम लोगों ने देखा है, राइट। TSH लेवल बड़ी रहेगी, T3 T4 लेवल भी आपको चेक करना है। और कुछ चेक कर सकते क्या? यस, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लीवर फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर, राइट। कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको चेक करना है इसके अंदर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन। और ये बेसल मेटाबॉलिक रेट है, आपकी बॉडी का फ्लूइड बैलेंस भी इम्बैलेंस करेगा, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। तो सोडियम का लेवल कम हो जाएगा यहाँ पर इन केस ऑफ, दैट इज कॉल्ड हाइपोथायराइडिज्म। सो मैनेजमेंट भी आपने देख लिए, मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ लीवोथायरोक्सिन, ओके। सो लीवोथायरोक्सिन इज बेसिकली सिंथेटिक लॉन्ग एक्टिंग फॉर्म। ये जो है सिंथेटिक है, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। ये कैसा है? लॉन्ग एक्टिंग फॉर्म ऑफ, दैट इज कॉल्ड थायरोक्सिन, सिंस दैट इज लीवोथायरोक्सिन। So ये हो गया आपका हाइपोथायराइडिज्म। अब हम लोग जाते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म यहाँ पर क्या हो रहा है, राइट। सो व्हाई देयर इज हाइपरथायराइडिज्म, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्रीज, यहाँ पर सारी चीजें भी क्या हो जाएगी, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ योर विच वन? थायराइड हार्मोन। बिकॉज ऑफ दैट प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा, सो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा, राइट। और स्टिमुलेट मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, एक्सासर्बेट इफेक्ट हो जाएंगे, आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्सासर्बेशन हो जाएगा, राइट। सो दिस इज जस्ट लाइक एड्रेनालिन रश। जैसे एड्रेनालिन रश रहता है ना, बहुत ज्यादा एड्रेनालिन स्टिमुलेट होने के बाद जो सारे साइन सिम्टम्स है वो आपके हाइपरथायराइडिज्म में आपको दिखेंगे, लाइक टैकीकार्डिया हो गया, पाल्पिटेशन, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज, हार्ट रेट इंक्रीजेस हो गया, राइट। आपको ट्रेमर्स इंक्रीज हो जाएंगे, एंजाइटी हो जाएगी, एंजाइटी, ट्रेमर्स, जो आप बहुत
एड्रीनालिन जब बढ़ जाता है, जैसे आपके साइन सिम्टम्स है वैसे ही आपको हाइपरथायरॉयडिज्म में मिलेंगे। दीज आर ऑल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। क्यों हो सकते हैं, राइट? क्योंकि आपकी थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन बहुत बढ़ गया है, राइट? हार्मोनल थायरोटॉक्सिकोसिस, राइट? सो मसल्स बिकम मोर एंड मोर वीक, ओके? स्लीपिंग प्रॉब्लम आएगा क्योंकि एक्टिवनेस रहेगा, स्लीप प्रॉब्लम ज्यादा आएगा। जैसे यहाँ कैसा था, लिथार्जिक था, डिप्रेस था, यहाँ मोर एंशियस रहेंगे आप, एंजाइटी में रहेंगे, स्लीपिंग प्रॉब्लम आएगा, राइट? यहाँ जैसे वेट गेन हो रहा है, यहाँ पर वेट लॉस होगा, यहाँ पर वेट, क्योंकि यहाँ ज्यादा हाइपर हो तो वेट लॉस होगा, यहाँ सोए रहते यहाँ पर वेट गेन होगा, राइट? यहाँ पर, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर टेम्परेचर। जैसे यहाँ पर कोल्ड एक्सट्रीमिटी है, यहाँ पर हॉट एक्सट्रीमिटी रहेगी। टेम्परेचर आपका कैसा रहेगा, थोड़ा सा हाई साइड में रहेगा इन केस ऑफ दी हाइपरथायरॉयडिज्म। तो ये हो गया आपका कौन सा, हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। इटियोपैथोजेनेसिस में हाइपरथायरॉयडिज्म, जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ पर ऑटो इम्यून, आयोडीन डेफिशिएंसी, Hashimoto's thyroiditis. Here 80% is Graves disease, hyperthyroidism, Graves disease. Goiter, लेकिन कौन सा, मल्टीनोड्यूलर गोइटर, कौन सा, मल्टीनोड्यूलर गोइटर, और थायरॉइडाइटिस या एडिनोमा। हाउ विल यू डायग्नोसिस हम लोग कैसे करते हैं, ये तो हो गया आपके कॉजेस, ग्रेव्स और मल्टीनोड्यूलर गोइटर। देन डायग्नोसिस, here the diagnosis by the blood test। यहाँ पर TSH, this is very important, TSH, okay, low TSH, T3 T4 is high, T3 T4 is high, so this is for the diagnosis, okay। बाद में हम लोग रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे, बहुत सारी टेस्ट है, राइट? एंड हाउ विल यू ट्रीट द हाइपरथायरॉयडिज्म, radio iodine therapy, that is radio iodine therapy, okay, that is the treatment of your which one, hyperthyroidism। यहाँ पर हम लोग हार्ट रेट अगर ज्यादा है तो हम लोग बीटा ब्लॉकर वगैरह दे सकते हैं, राइट? सो बीटा ब्लॉकर हम लोग यूज कर सकते हैं, और we already know one drug that is called methimazole और propyl thiouracil, or you can directly go for the last resort जो है सर्जरी आपका है, that is called। साइन एंड सिम्टम्स आप लोगों ने देख लिए, इरिटेबल है, इंक्रीज पर्सपिरेशन, हार्ट रेट ज्यादा हो गया, ट्रेमर्स आ गए, एंजाइटी, स्लीप कंप्लीट नहीं रही है, एड्रीनालिन रश वाले सारे सिम्टम्स, वेट आपका लूज हो रहा है, ओके? यहाँ पर जैसे कॉन्स्टिपेशन है, यहाँ पर डायरिया हो जाएगा, इससे सब उल्टा हो रहा है इधर, राइट? ओके, यहाँ पर वेट गेन हो रहा है, यहाँ पर वेट लॉस हो जाएगा। सो दीज आर ऑल अबाउट द साइन एंड सिम्टम। यहाँ पर जैसे देखो, मेनोरेजिया हो रहा था, इंक्रीज ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ पर क्या होगा, ओके, देयर इज अ लेस ब्लीडिंग, देयर इज अ लेस मेंस्ट्रुअल फ्लो, डिक्रीज ब्लीडिंग। ऐसे आप कंपेयर करके लिखना है आपको। यहाँ पर मेनोरेजिया हो रहा है, ओके, यहाँ पर बहुत कम ब्लीडिंग हो रहा है, राइट? सो दैट्स व्हाई देयर इज अ एनीमिक लाइक सिम्टम्स, बीपी बढ़ रहा है, यूरिन बढ़ रहा है, थर्स्ट, यूरिन, ये सारे एड्रेनालिन रश के सिम्टम्स है, राइट? सो वन मोर साइन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, आई साइन, आई एनलार्ज, आई कैसे हो जाएंगे, एनलार्ज, जिसको हम लोग एक्सोप्थैलेमस बोलते हैं, आई एनलार्ज, और आंख सामने आने के बाद आपकी जो अपर लीड है वो पूरे आई को कवर नहीं कर पाती, जिसको हम लोग बोलते हैं लीड लैग। बहुत सारे साइन है ऑकुलर साइन, बट आपको एक्सोप्थैलेमस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, राइट? एंड यू ऑलरेडी नो थायराइडाइटिस में है, ग्रेव्स डिजीज में मल्टीनोड्यूलर ग्वाइटर है, या आपने अगर ये थायरोक्सिन अगर एक्सेसिव दे दिया तो वहां भी प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट? इफ यू गिव द एक्सेसिव लेवोथायरोक्सिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म कैन लैंड अप इनटू हाइपरथायरॉयडिज्म, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लो TSH लेवल है एंड इंक्रीज T3 एंड T4 है, राइट? सो व्हाट वी कैन गिव द रेडियो एक्टिव आयोडीन, ओके, आप ये दे सकते हैं, या थायरोस्टैटिक जो ड्रग है आपके, मेथिमाजोल है, प्रोपाइल थायोरेसिल है, या हार्ट कंडीशन के लिए बीटा ब्लॉकर है, या आप कर सकते हैं, या यू कैन जस्ट गो फॉर द थायराइडेक्टोमी सर्जरी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डिफरेंस बिटवीन हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। सो वी जस्ट फिनिश द थायराइड ग्लैंड। हम डायबिटीज, एक एंडोक्राइनोलॉजी में जो जो आपके डिजीज आते हैं वो हम लोग कंप्लीट करेंगे इस सेक्शन में।